Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mrs. Bushra Mushtaq, PG Psychiatric Nursing, and today I am with the part second of the previous video, that is the ectopic pregnancy. Today I will be discussing about the mode of termination of the ectopic pregnancy, clinical features of the ectopic pregnancy, and diagnosis of the ectopic pregnancy. Before moving to the mode of termination of the ectopic pregnancy, as we were discussing about the tubal pregnancy, so how the mode of termination occurs, what is the basic pathophysiology behind it when the termination of the tubal pregnancy occurs, because there is the there may be the unfavorable conditions and it cannot implant in the tubes, so there is the separation of the gestational sac from the tubal wall, right? When there is the separation of this fertilized ovum from the tubal wall, there will be the degeneration, there will be no supply, there will be no nourishment to this further, so there will be degeneration which will result in the fall in the this HCG levels, and there will be definitely the regression of the corpus luteum. And once there is the corpus luteum regression, there is the drastic drop in the hormones like the estrogen and the progesterone level, and then when these hormones level get decreased, the decidua which is formed in the uterine cavity will also get shedded, sloughed off, and with the uterine bleeding. Now, mode of termination, as we were discussing about the tubal pregnancy, how it will terminate. The tubal pregnancy may terminate as a tubal mole, as tubal abortion, as tubal rupture, or secondary abdominal pregnancy, or secondary broad ligament pregnancy. Talking about the tubal mole, basically, as there is the unfavorable environments, different unfavorable environments, the formation of this tubal mole, it is similar to that formed in the uterine pregnancy, right? The whether the mole is formed in the uterine pregnancy, बिल्कुल उसी तरीके से ट्यूबल मोल भी फॉर्म होता है. कैसे? जैसे रिपीटेड स्मॉल हेमरेजेस होंगे ऑकर्स इन द कोरियोनिक कैप्सूल स्पेस, दैट इज़ जहाँ पे इसको इम्प्लांटेशन होना है, एंड द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन एंड द एम्ब्रियो, ठीक है ना, जिसके बाद वो क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट्स वहाँ पे बनेंगे, दैट इज़ हेमरेजेस विल ऑकर एंड रिजल्ट इन द ब्लड क्लॉट्स, जिसकी वजह से सेपरेशन फ्रॉम द दिस ऑफ द विलाई फ्रॉम देयर अटैचमेंट्स हो जाएंगे, और फिर ये बिल्कुल एक मोल जैसा बनेगा. फिर इस मोल का क्या होगा, या तो कंप्लीट एबॉर्शन के तौर पर ये कंप्लीट एबॉर्शन इसका होगा, या एक्सपल्शन हो जाएगा इसको थ्रू एब्डोमेन, ठीक है ना, एब्डोमेन ऑस्टियम के ज़रिए से एज अ ट्यूबल एबॉर्शन with because there are various hemorrhages also present with a varying number of the internal hemorrhages may also be present there. वो हो सकता है. या मैंने इससे पहले भी जब एबॉर्शन के बारे में बात की थी, तब मैंने बोला था ये जो क्या इसको बोलते हैं, ये ब्लड हेमरेजेस होते हैं, दे विल बी सो कलेक्टेड इन अ पाउच ऑफ ढलक्स, जो मैंने बोला था, जिसको हम पेल्विक हेमेटोसील भी बोलते हैं, वो भी हो सकता है. द सेकेंड इज़ द ट्यूबल एबॉर्शन. ट्यूबल एबॉर्शन बहुत ही कॉमन मोड ऑफ टर्मिनेशन, अगर इम्प्लांटेशन ज़्यादातर एम्प्लॉ में होगी, एम्प्लॉ इन द ट्यूब, और द इन्फेंटिब्यूलम में होगी. ये क्यों होता है ट्यूबल एबॉर्शन? बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मस्कुलर कंट्रैक्शंस, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाती है फ्रॉम इट्स अटैचमेंट्स from the tubal wall, and it facilitates in the this expulsion through but what abdominal ostium के ज़रिए से ये बाहर आ जाता है ट्यूबल एबॉर्शन. या तो इसका फेट होगा ट्यूबल रप्चर. ट्यूबल रप्चर इट इज़ वेरी प्रिडोमिनेंट इन इस्थमस में, अगर प्रेगनेंसी हुई होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी, या इंटरस्टेशल इम्प्लांटेशन हुई होगी, तो
तो क्योंकि इस्थमस बहुत ही नैरो पार्ट है ना, ये आपको पता ही है, इट इज़ अ वेरी नैरो पोर्शन एंड द वॉल्स ऑफ दिस इस्थमस दे आर लेस distensible, so the walls may easily get eroded by the chorionic villi and this results in the isthmic rupture. Usually जब pregnancy 6 to 8 weeks तक पहुंच जाती है in the isthmus, और अगर हम interstitial की बात करेंगे तब 4 months तक भी जा सकती है प्रेगनेंसी, उसके बाद उसके वॉल्स रप्चर होते हैं और वो पूरे ट्यूब को रप्चर कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबल रप्चर। वो भी फेट हो सकता है ट्यूबल प्रेगनेंसी का। या फिर सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, बेसिकली सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है इन द क्या उसको बोलते हैं ऑन द पेल्विक पेरिटोनियम आफ्टर एक्सपल्शन, अगर फॉर एग्जांपल रप्चर हो गया ट्यूब, ठीक है ना, रप्चर हो गया ट्यूब, ये जो एक्सपल्शन होता है जो निकलेगा, ये क्या करता है, ये जा सकता है या इम्प्लांट हो सकता है इन द पेल्विक पेरिटोनियम, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अब सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी कंटिन्यूशन कर सकती है फीटल ग्रोथ, जो भी कंटेंट बाहर निकल होता है ड्यू टू द ट्यूबल रप्चर, कंटेंट बाहर निकल होता है वो एब्डोमेन पोर्शन में जा सकता है और वो कंटिन्यू कर सकता है किसी हद तक फीटल ग्रोथ, अगर कि ये जो परफोरेशन ऑफ द ट्यूबल वॉल अगर ये स्लो प्रोसेस हो जाएगा या अभी एमनियन इंटैक्ट है तब ये कर सकता है, या प्लेसेंटा कोरियन जो है उसको कोई इंजरी तब तक नहीं आई होगी तब भी ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकता है। एंड क्या उसको बोलते हैं फिर प्लेसेंटा क्या करता है, अगर अभी इंटैक्ट ही है तो वो नेबरिंग स्ट्रक्चर्स से ज़्यादा अटैच होकर न्यू वेस्कुलेचर फॉर्म कर सकता है, री एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है ना। एंड क्या उसको बोलते हैं फिर या इंटेस्टाइन्स या ओमेंटम या एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इसके साथ एडहेर हो सकते हैं, तो उस तरीके से ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है एज अ सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। अगला इसका जो फेट हो सकता है दैट इज़ द सेकेंडरी ब्रॉड लिगामेंट प्रेगनेंसी। सेकेंडरी ब्रॉड ये रेयरली pregnancy may continue in the same process as in the this what is called as abdominal pregnancy. Basically it is between the two layers of the peritoneum also, it can continue there also. See here you can see the tubal abortion, how it occurs. This is the picture giving you an idea how the contractions may have occurred and that has lead to the tubal abortion. Here you can see the tubal rupture, how the tubes rupture and there is the expulsion of the internal conceptus. This picture also depicts the intraligament pregnancy, that is the broad ligament hematoma, showing the death of the ovum. Here is also the ruptured ectopic pregnancy. Here you can see in the arrow ectopic pregnancy, and there are various hemorrhages which have taken place because rupture occurs due to the continuous small hemorrhages. So there are the clotted blood also, and how there is the ruptured ectopic pregnancy in this picture. Now coming to the clinical features of the ectopic pregnancy. There are very few clinical conditions which are exhibited so varied features that you can distinguish between the different types of the ectopic pregnancy, ठीक है ना। एंड इनके 3 clinical features आते, 3 तरीके से आपको दिख सकता है ectopic pregnancy, you know, varying किस किस तरीके से clinical features present करेगा या ectopic pregnancy, उस हिसाब से इसकी 3 types मैं कह सकती हूँ। acute ectopic pregnancy, unruptured
और क्रॉनिक। पहले बात करेंगे हम एक्यूट एक्टोपिक की। अगर एक्यूट एक्टोपिक की बात करेंगे, दिस एक्यूट एक्टोपिक इट इज़ लेस कॉमन, ये बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट अबाउट 30%, एंड इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विथ, जो मैंने आपको बोला, ट्यूबल रप्चर या ट्यूबल एबॉर्शन, जिसकी वजह से इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड होता है, ठीक है ना। चाहे वो ट्यूबल रप्चर होगा, चाहे वो ट्यूबल व्हाट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबल एबॉर्शन होगा, जिसकी वजह से इंट्रा पेरिटोनियम हेमरेजेस होंगे, बट इट इज़ वेरी लेस। अगर हम पेशेंट की बात करेंगे कि वो कैसा दिखेगा इस वाले कंडीशन में जिसको एक्यूट एक्टोपिक होगा, यूजुअली इंसिडेंस पाए गए हैं कि यूजुअली ये वाली प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूजुअली 20 ईयर्स या 30 ईयर्स तक ही पाई जाती है। इसका मतलब मैक्सिमम फर्टिलिटी पीरियड वही होता है, एंड इट इज़ मोर प्रिवेलेंट इन द नालेपैरस वुमेन, यू नो, एंड जिसकी वजह से इसको बहुत देर तक इनफर्टिलिटी हो सकती है इस क्लाइंट को। अगर मोड ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे, इट इज़ वेरी एक्यूट, क्योंकि ये एक्यूट एक्टोपिक ही है, तो मोड ऑफ ऑनसेट इज़ एक्यूट, एंड इसको यूजुअली जो पेशेंट्स जिनको ये होगा, दे हैव गॉट परसिस्टेंट यूनिलेटरल अनइजीनेस एंड बिफोर द एक्यूट सिम्टम्स ऑकर, बिल्कुल बेचैनी सी होगी उनको जब तक कि उनको सिम्टम्स आ जाएंगे। सिम्टम्स में यूजुअली क्या इसको बोलते हैं हम, देखते हैं एमेनोरिया होता है। एमेनोरिया शॉर्ट पीरियड लगभग 6 to 8 वीक्स तक हो जाता है इनको, एंड देयर मे बी यू नो, क्योंकि उनको लगता है दैट दे आर प्रेग्नेंट, एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज they are pregnant, and there may be delayed periods or the history of the vaginal spotting, this occurs. Abdominal pain हो सकता है, it is very most constant feature of the acute ectopic. It is very acute, या क्लॉन की पेन हो सकती है इसको, वेग सोरनेस हो सकती है, या पेन लोकलाइज्ड हो सकती है टू द लोअर एब्डोमेन, यूनिलेटरल, बायलेटरल, या जनरलाइज्ड शोल्डर टिप पेन भी हो सकती है इसको। वेजिनल ब्लीडिंग हो सकती है, इट मे बी स्लाइट और इट मे बी कंटिन्यूस, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपल्शन हो गया डेसिडुअल कास्ट का, मे बी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द वेजिनल ब्लीडिंग ऑल्सो। वॉमिटिंग हो सकती है, देयर आर द फेंटिंग अटैक्स, दैट इज द सिंकोपल अटैक भी हो सकता है, बिकॉज due to the vasomotor disturbances, because peritoneal irritation हो गई due to the hemoperitoneum, blood आ गया पेरिटोनियम में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस की वजह से सिंकोप अटैक्स आ सकते हैं। द साइंस क्या हो सकता है इस एक्यूट एक्टोपिक में? जनरल लुक अगर हम उस क्लाइंट का देखेंगे तो वो क्वाइट कॉन्शियस ही होगा, एंड यू नो लुक से हमें ब्लैंचेड वो लग सकता है, पेलर लग सकता है अमाउंट, बिकॉज देयर आर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द इंटरनल हेमरेजेस प्रेजेंट, उसकी वजह से वो पेलर हो सकता है। फीचर्स ऑफ शॉक आपको मिलेगा, दैट इज़ पल्स उसकी रैपिड मिल सकती है, एंड फीबल हाइपोटेंशन हो सकता है, या कोल्ड कामी एक्सट्रीमिटीज़, ये वाले फीचर्स ऑफ द शॉक आपको इसमें मिल सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन अगर हम करेंगे लोअर एग में, वो टेंस मिलेगा, टेंडर मिलेगा, यूजुअली मास कोई नहीं मिल सकता है आपको, बट बोवल्स में बी डिस्टेंडेड, यू नो, वो हो सकता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। पेल्विक एग्जामिनेशन में अगर हम बात करेंगे तो क्या इसको बोलते हैं, हमें वेजिनल म्यूकोसा वाइट मिल सकता है, यूट्रस का साइज़ हमें यूजुअली स्लाइटली बल्की मिलता है, और एक्सट्रीम टेंडरनेस मिल सकती है हमें इन द फॉर्निक्स ऑफ द यूट्रस। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स इन द एक्यूट एक्टोपिक। नाउ अनरप्चर्ड अगर होगा, क्योंकि मैंने बोला ये 3 क्लिनिकल फीचर्स है, एक तो हमने किया डिस्कस एक्यूट एक्टोपिक। अब अगर अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, उसमें क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं?
एंड व्हाट इज़ कॉल्ड एज इसमें ये पाया गया है कि दे द physicians which diagnose the ectopic pregnancy, usually they go for the differential diagnosis for this, but still they have some sort of the because the women has a very high risk of her mortality during this unruptured tubal pregnancy. अगर हम symptoms की बात करेंगे, there are the presence of delayed periods or spotting, which are the features suggest to that the pregnancy. ठीक है ना. Uneasiness on one side, that is the flank which is continuous but sometimes colicky in nature हो सकती है वो. साइंस में हम यूजुअली बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसकी बाई एनुअल एग्जामिनेशन में यूट्रस हमें यूजुअली सॉफ्ट दिखता है, विच जो साबित होता है कि ये इट इज़ यूजुअली सॉफ्ट, शोइंग द एविडेंस ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी. और हमें पल्सेटाइल स्मॉल वेल सर्कमसाइज्ड हमें टेंडर मास भी दिख सकता है. इट मे बी felt on one fornix of the uterus, and but when we do the palpation, it should be very much gentle, because there are the more chances the rupture may precipitate and there may be the intense or the massive intraperitoneal hemorrhage. तो इसकी वजह से हमें बहुत ही gentle होना पड़ता है during हम ये वाले सारा क्या इसको बोलते हैं manual examination या palpation करेंगे. कमिंग टू द क्रॉनिक और द ओल्ड एक्टोपिक, जो इसका तीसरा क्लिनिकल फीचर है, तो इसका अगर मैं मोड ऑफ ऑनसेट बोलूँ, इट इज़ इंसिडियस ऑनसेट, और पेशेंट को प्रीवियस अटैक्स ऑफ एक्यूट पेन हुए होंगे जिससे उसने रिकवर किया होगा. एंड सिम्टम्स इसके यही रहेंगे: एमेनोरिया, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड लगभग 6 to 8 वीक्स तक ये प्रेजेंट होगा. लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा विद वेरिंग डिग्रीज, डल और कॉलिकी इन नेचर होगा. वेजिनल ब्लीडिंग रहेगी, जो क्या इसको बोलते हैं, अगर वेजिनल ब्लीडिंग होगी तो वो सूनर और लेटर फॉलोइंग द पेन उसके साथ साथ वो होता रहेगा. एंड दिस वेजिनल ब्लीडिंग या तो वो स्कैंटी हो सकती है एंड डार्क कलर्ड भी हो सकती है, एंड मे बी कंटिन्यूस इन नेचर ऑल्सो. And other symptoms may be there may be the bladder irritation हो सकती है, dysuria हो सकता है, rise in temperature क्यों हो सकता है, because of the infection or due to the abortion of the productus, जिसकी वजह से कभी degenerated blood रह सकता है in the abdomen, जिसकी वजह से क्या इसको बोलते हैं, infection हो सकता है. और अगर एग्जामिनेशन करें तो क्रॉनिक या ओल्ड एक्टोपिक में पेशेंट हमें सीधे ही बीमार लगेगा. ही विल लुक इल, पेलर प्रेजेंट होगा विथ अ वैरिंग डिग्री, बिकॉज यहाँ से इसको हेमरेजेस हो सकते हैं, ठीक है ना. एंड पल्स इसकी क्या उसको बोलते हैं, हाई ही रहेगी इवन ड्यूरिंग द रेस्ट. टेम्परेचर एलिवेटेड रहेगा. और दिस पर एब्डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो टेंडरनेस हमें मिलेगी इन द लोअर एब्डोमेन. मास हमें मिल सकता है इन द लोअर एब्डोमेन विच में बी इरेग्युलर एंड टेंडर. एंड अगर हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे, वो बहुत ही बाई मैनुअल एग्जामिनेशन बहुत ही पेनफुल रहता है, लेकिन वो क्या दिखाता है, वो यही वेजिनल म्यूकोसा का पेल, मतलब when we do the bimanual examination, it will show the vaginal mucosa as the pain, and the uterus may seem to be as a normal or a little bit bulky in nature. Yeah, and there will be the extreme tenderness in the cervix also. तो ये हमें मिल सकता है on the examination, ये वाले साइंस मिलते हैं. उसके बाद आता है डायग्नोसिस, हाउ वी विल डायग्नोस द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए अगर हम बात करेंगे, अभी मैंने बोले 3 क्लिनिकल फीचर्स, जो इन 3 क्लिनिकल फीचर्स चाहे 3 टाइप्स जो भी इनमें फीचर्स है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वही तो फीचर्स है, वही क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से ही आपको पता चलता है, एंड यू कैन ईजिली डायग्नोस एनी फॉर्म ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी.
सो बेसिकली एक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 A's तो होते ही होते हैं while we are diagnosing any type of the ectopic pregnancy, and that is the abdominal pain which is very most common. Amenorrhea 75% cases में amenorrhea होता है, and abnormal vaginal bleeding almost 70% of the cases में. That is 3 A's, that is this is called as clinical triad also. ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे when you are diagnosing an ectopic pregnancy. And when we are diagnosing about the ectopic pregnancy, we have to take multi-modality approach in our approach. हमें इख्तियार करना है. We have to include that. We have to take the proper history of the client जो भी आया होगा for seeking the medical care, उसके cycle के बारे में, pregnancy, whether any pelvic inflammatory disease previously, infertility, any gynecological surgery, or any type of the contraception. The history, proper history taking is very much important while we are diagnosing the ectopic pregnancy. And when we go for the clinical examination, it should be proper general as well as abdominal, vaginal, and vital signs are very must, because the previously we saw how it fluctuates, whether the temperature, whether the pulse, how it fluctuates with the different clinical features. तो उसी वजह से ये वाला clinical examination करना बहुत ज़रूरी है for diagnosing any sort of ectopic pregnancy. And we have to use the investigations very much properly. एंड हमें ये भी ख्याल रखना है कि the presentations, sometimes patient is asymptomatic to the others with the they may be in the shock, they may be in the they may have the acute abdominal pain or any such. So we have to be cautious regarding the wide spectrum of the clinical features that may be present in the ectopic pregnancy. एंड दिस अर्ली सिम्टम्स, ये तो या तो कभी एब्सेंट भी होते हैं या बहुत ही फीबल होते हैं कि हम मे भी इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. नाउ एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम कैसे इसको बोलते हैं डायग्नोस करेंगे. टॉकिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल ट्रायड, जो मैंने बोला 3 A's होता है, द patient will be with what is called as features of shock. उसमें Danforth and Cullen signs होंगे. Danforth basically जब वो inspire करता है ना, उसको बोलेंगे inspire करने को, उसको shoulders में pain होती है, ठीक है ना. क्यों? बिकॉज ऑफ द इरिटेशन, डायफ्राम में इरिटेशन की वजह से उसको शोल्डर पेन होती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी क्या उसको बोलते हैं हेमोरेजेस इंटरनल हुए होंगे, मे बी उसको हेमोपेरिटोनियम हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या उसको बोलते हैं इरिटेशन कॉज्ड इन द डायफ्राम एंड विच रिजल्ट्स इन द पेन. Danforth साइन उसको बोलते हैं, वो हो सकता है इन द एक्यूट प्रेगनेंसी. दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट एक्टोपिक. क्यूलिन साइंस हो सकती है. क्यूलिन साइंस यूजुअली अम्बिलिकस जो होता है पेशेंट का, वहाँ पे आपको एडिमा या ब्रूजिंग मिलेगी इन द सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज़ अराउंड द अम्बिलिकस. एंड बेसिकली ये क्यूलिन वाज अ गायनोकोलॉजिस्ट, थॉमस क्यूलिन, जिसकी बाद इसको ये नाम रखा गया, वो क्यूलिन साइन इसमें. अगर हम पर एब्डोमेन की बारे में बात करेंगे, डायग्नोसिस हमें एक्यूट एक्टोपिक में मिल सकता है. एब्डोमिनल टेंडरनेस, गॉर्डिंग टाइप एब्डोमेन होगा. पीवी अगर करेंगे, यूट्रस बल्कि लगेगा, फॉर्निक्स टेंडर होगा. एंड जब हम हिलाएंगे या व्हेन वी आर डूइंग द सर्विकल एग्जामिनेशन, इट शोज अ क्विक जर्क टाइप ऑफ मोशंस, जिसको हम जंपिंग साइन भी बोलते हैं, ठीक. एंड वी इफ़ वी गो फॉर द बाइमैनुअल एग्जामिनेशंस, चाहे पीवी वगैरह, तो वो बहुत ही जेंटल, जो मैंने इससे पहले भी बोला, वेरी मच जेंटल शुड बी डन. एंड वेरी मच फैसिलिटीज़ हमें उधर होनी चाहिए. उसके बाद ही हमें ये अटेम्प्ट करना चाहिए बाइमैनुअल एग्जामिनेशन. क्रॉनिक एक्टोपिक में आपको कैसे डायग्नोस मिलेगा? हिस्ट्री पेशेंट की मिलेगी,
उसको क्योंकि हिस्ट्री बहुत लेना इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसको अटैक्स ऑफ पेन आए होंगे एंड जिसके बाद वो शी हैज़ रिकवर्ड एंड ऑन एग्जामिनेशन सीधे ही इल फेस नज़र आएगा क्लाइंट का विद द फीचर्स ऑफ शॉक, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। पर एब्डोमेन अगर हम करेंगे इरेगुलर मासेस या टेंडरनेस मिल सकते हैं। एंड इफ़ वी गो द PV एग्जामिनेशन वी कैन सी और द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन, तो हमें वेजिनल म्यूकोसा पेल मिल सकता है और PV में भी हमें या तो नॉर्मल मिलेगा यूट्रस, ए लिटिल बिट बल्की भी मिल सकता है। एंड देयर मे बी द मास फेल्ट इन द फॉर्निक्स ऑल्सो। अनरप्चर्ड एक्टोपिक डायग्नोस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एंड दे हैव द हाई क्लिनिकल सस्पिशियस वेरी मच विजिलेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस और सस्पिनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इसमें। और यूजुअली हम ये लेट इट गो करते हैं, हमें ये डायग्नोस ही नहीं होता है। फिर इफ़ वी हैव डन एक्सीडेंटली द लेप्रोस्कोपी और लेप्रोक्टमी, देन इट गेट्स डायग्नोस्ड दैट इट हैज़ द ruptured ectopic, because unruptured has, so definitely there will be no bleeding, the signs of the hemoperitoneum, the signs of the pelvic hematocele, वो वाला साइंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से इसको डायग्नोस करना बहुत ही मुश्किल जाता है। इसमें भी डिलेड पीरियड्स मिलेंगे आपको, एमेनोरिया के पीरियड्स, या स्पॉटिंग मिल सकती है विथ लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पर एब्डोमेन करेंगे तो टेंडरनेस ऑफ द लोअर एब्डोमेन मिलेगा, और पर वेजाइनल करेंगे यूजुअली नॉर्मल यूट्रस मिल सकता है आपको। एंड टेंडर मास may be felt in the fornix also. So these were the diagnosis of the different types of the what is called as ectopic pregnancies. This was all about today's topic. I will continue with the third part inshallah ta'ala very soon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.